काफ़ी फ्रेंडली और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जो कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। तो ये था हमारा इंट्रो वीडियो कोड शेप आरईआईटी का। तो कैसे हो सब लोग? मैं हूँ ओमकार और बहुत सारे लोग मुझे पहले से पहचानते होंगे, होपफुली। अगर नहीं पहचानते तो जान लोगे। और बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। हम जानेंगे क्या है कोड शेफ के बेनिफिट्स क्या है और क्यों कोड शेफ ज्वाइन करना चाहिए हमें। ये सारी चीजें देखेंगे इस सेशन में हम लोग। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कोड शेफ आरआईटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ओके, एंड सो इंट्रो। हेलो गाइस, ये ओमकार का यूट्यूब वर्जन था। सो जब या भी कोई राइट, टेक्निकल इंटरेक्शन होता है, ओमकार। कोई बड़ी चीज होने वाली है, जस्ट स्विचेस टू हिज यूट्यूब वर्जन। ओके, सो हेलो गाइस, और शुड आई कॉल यू गाइस शेफ्स ऑलरेडी? ओके ओके, मेंबरशिप फॉर्म भरना फिर शेफ्स बुलाएंगे। ओके, सो हाउ आर यू ऑल? आधे लोगों से बात हो गई है, बाकी सब बोल दो। हाउ आर यू? हाउ वाज योर डे? फाइन फाइन। Wow, great. So, when you guys heard that we are starting a code chef chapter, so what did hit your mind? Like, क्या आया तुम्हारे दिमाग में? Oh my God, shit, another chapter, another committee, या फिर like switch to सीधा Three Idiots वाला मोड की वाओ आज कुछ नया सीखने मिलेगा? ऑप्शन वन। ऑप्शन 2। ओके, इंटरेस्टिंग। मेरे लीड्स ही आंसर कर रहे हैं, क्या बाकी किसी क्या को है ये कोड इंटरेस्ट शेफ, नहीं क्या है। है? टू डे इवेंट है क्या कुछ? अरे भाई, बहुत गलत फहमी में हो। टू डे इवेंट नहीं है, पूरा कमिटी है, ग्लोबल कमिटी। ओके, सो do you guys remember there was a question in the registration form that how many of you know about CodeChef? So many people knew and few were not aware about like क्या है CodeChef. So for them, first I'll explain what is CodeChef. Code chef. So code chef matlab a person who cooks code? Maybe, yeah. Because everyone has a different taste. Everyone likes different cuisine. Like some like South Indian, some like North Indian, Punjabi, Italian, Mexican, Thai, everything. So सबको बनाने का अलग अलग तरीका होता है. Everyone cooks with their own taste, own choices. So that is what is code chef. And this explanation, this theory was made by Mrinalin Sahu. Thank you. Okay. So starting off with what is Code Chef? Seriously, Code Chef is a competitive programming community which promotes competitive programming at a global level. The global committee set all around the world invites coder from around the world, America, USA, Ukraine, Afghanistan, जो भी है. Okay. So, CodeChef promotes constant learning and friendly programming competitions for its user, along with the support of its large community of problem curators. So, are you guys excited in this journey? या फिर हम बोल रहे हैं और तुम लोग सुन रहे हो? Okay. So, moving on to why we started this chapter. Sneha, please explain. तो सबके मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा, व्हाई कोडशेफ चैप्टर? Basically, the aim was to make learning competitive programming accessible for students globally. We'll make sure you solve 100 problems and your thinking ability improves. Also, we'll help you people to find solutions since we'll be having a group with like-minded people. तो सीखना और आंसर्स मिलना काफी जल्दी हो जाएगा. The mission of CodeChef chapter is to build a robust programming environment in our college. तो सब लोग membership ले लो because this is going to be a very delicious ride.
Okay, so next part is what is competitive programming. As you know, CodeChef is basically it has its roots in competitive programming only. It is holding many contests every year. So competitive programming is actually a mind sport which is usually held to all over the internet, and where many people participate and they code together to provide solutions to some programming questions. So it is recognized by many multinational software and internet companies. Like you may have heard that in interviews they ask you coding questions and all those questions. So these are all based on competitive programming. So talking more about programming competition is that it involves actually a host who has a set of questions like some mathematical problems or some logical puzzles and all, एंड ये सब क्वेश्चंस मिला के वो लोग एक कोडिंग का पूरा कंपटीशन अरेंज करते हैं जिसमें आप लोगों को सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं. सो इन दैट दे हैव अ सेट ऑफ इनपुट, देन आउटपुट्स, देन what logic will you be applying, then a problem statement, and in that you have to use DSA and all, and after using that you have to code that thing sitting on your computer. So this is called competitive programming. So you may be seeing a list of languages here. तो आप लोग कौन से लैंग्वेज से फैमिलियर हो इसमें से, या फिर कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो. React. C++, Dart, C++, Python. Okay. ओमकार को रिएक्ट पसंद है बहुत. सर मुझे सबका थोड़ा थोड़ा आता है, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा. So okay, good. I see many C and C++ here. Okay, Java वाले लोग भी है. Nice. अनिकेत की खुशी देखो. Okay. सर React. हाँ रिएक्ट में कर ले तू. फ्लाइंग चप्पल फॉर ओमकार खंडालकर. Okay. Java is बचपन का प्यार. Nice. Okay, so just like we have various ingredients in our cooking, and in the same way we have programming languages for our competitive programming. So there are many languages, and you can be like, you may be favoring in one language or you may be coding in various languages, so that doesn't matter. We will teach you everything here in CodeChef, and that's why we have formed this chapter. Okay. So what are the benefits of competitive programming? So as I said that when you go for interview rounds, when you will come in 4th year, then you will have to go many in-campus and off-campus placements. There they have coding contest. Also you will be viewing various competitions held on hackathon and other sites where they keep programming competitions. So in that they have such coding rounds, and also in interviews they ask many questions based on competitive programming. So for that we are forming this chapter to help you and to guide you towards pursuing those goals, so that you may get a good job. You know, मतलब सबको ये हाई सैलरी वाला जॉब ही चाहिए ऑफ कोर्स, एंड हाईली पेइंग कंपनीज भी है अपने पास, गूगल, फेसबुक वगैरह जैसे. सो उनके जैसे ऑफ कैंपस में से जा रहे हो तो फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ अ मस्ट. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो करियर प्रिपरेशन एंड एडवांसमेंट में हेल्प होता है. देन अगेन the ability to deliver results under pressure, like once you start into this field you will get to know about it. just like जब हम लोग छोटे होते थे, मैथ्स का पेपर रहता था, तभी हम लोग सॉल्व करते रहते थे और टाइम भी निकल जाता था. So in the same way competitive programming is there. You just have to build your logic, and after that you have to code it into your own like the language which you prefer. So you will be we will be giving you assessments, like you can be here self-assessed, or also you'll be needing to solve complex problems with competitive peers. like competitions रहेंगे तो बाकी competitors भी रहेंगे आपके साथ. Also you will polish your DSA, problem solving skills, and also dynamic programming, जिन लोगों को dynamic programming आता होगा. and CodeChef का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि अपॉर्चुनिटी टू अर्न स्वैग्स एंड मॉनिटरी गिफ्ट्स. जैसे कि आप लोगों ने हम लोग के लिंक्डइन और इंस्टा के पोस्ट नहीं तो स्टोरीज पे देखा रहेगा कि बहुत सारे स्वैग्स मिलते हैं आजकल. So these are all the benefits. Okay, so let's talk about various programming competitions. तो जैसे अनिकेत ने बहुत सारे तो जैसे अनिकेत ने बहुत सारे कंपटीशन बहुत सारे बेनिफिट्स बताए उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहिए अपने को? क्यों करना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? हम क्यों कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग?
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है और बहुत ही यूज होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का लॉजिक डेवलपमेंट में। कैसे वाइस वर्सा है कि लॉजिक डेवलपमेंट सीपी पे रिलेटेड है और सीपी लॉजिक डेवलपमेंट पे है। ये दोनों दोनों चीजें डेवलप होती है एक साथ। जब भी हम लॉजिक डेवलपमेंट होते हैं अपने, तभी अपना सीपी भी और स्ट्रांग होता है। और बहुत सारे कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल के, जैसे गूगल किक स्टार्ट है। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम जर्नी, तो आप गूगल किक स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा गूगल कोड जैम है, फेसबुक हैकर्स क्लब है, फिर एसीएम का आईसीपीसी करके एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, और एक माइंड स्पोर्ट गेम है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। और इसके जो बेनिफिट्स क्या है कि हम लोग को एक तो लॉजिक डेवलपमेंट स्ट्रांग होता है, और फिर अपने को इससे जॉब भी मिलती है। जैसे मैं बोला क्यों करना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अगर नहीं किया तो जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो जॉब मिलते हैं विदाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से चांसेस बढ़ते हैं जॉब मिलने के। बैंक में आप ट्राई कर सकते हो, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ये सारे। फेसबुक का थोड़ा सा हाई लेवल होता है, अमेजोन के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, तो डिपेंड करता है। बट मोस्टली जो इंडिया वाला बैंक है तो फिर वो ज्यादा तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेस्ट है। और उसके अलावा आपको स्वैक्स मिलते हैं, अलग अलग स्वैक्स मिलते हैं, कैश प्राइजेस मिलते हैं, और ये कैश प्राइजेस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में रहते हैं। ऐसा 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे प्राइजेस नहीं मिलते कॉम्पिटिशन में। तो बहुत स्वैक्स लाइक बैग्स मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलेंगे, पेन ड्राइव मिलेंगे। कुछ कॉम्पिटिशन्स में तो लैपटॉप वगैरह भी मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप है। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो विद पार्टिसिपेटिंग गूगल किक स्टार्ट। तो फिलहाल करंटली गूगल किक स्टार्ट का रजिस्ट्रेशन चालू है। उसके अलावा कोड शेफ का भी खुद का कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल लेवल पे, स्नैक डाउन करके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और लोगों को भी इनवाइट करते हो तो आपको स्वैक्स मिलेंगे कोड शेफ की तरफ से, स्नैक डाउन की तरफ से, और टी शर्ट्स मिलेगा, बैग्स मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, फिर बॉटल्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो अभी फिलहाल के लिए तुम लोग किक स्टार्ट और कोड शेफ स्नैक डाउन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक एंड ऑफ सेशन हम चैट बॉक्स में और ग्रुप में भी भेज देंगे। So you can start your competitive journey from today itself. तो ये तो हुआ वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के बारे में। तो आगे की स्लाइड सुनिए स्नेहा की आवाज में। अरे सॉरी, ये मेरी आवाज में है क्या, या मुझे ही करना है इसे? तो कर दे, अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, फिर स्नेहा बोल रही है तो मैं ही कर देता हूँ। लैंग्वेज चेंज चाहिए तो वो भी बोल दो। हाँ, ओमकार ने तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर भी बना लिया है, तो आगे एलेक्सा की आवाज में भी सुन सकते हो सब। हाँ। एलेक्सा को हम ओमकार से रिप्लेस करते हैं। चल जाएगा। मेरे गिटअप को भी फॉलो कर दो, प्रोमोशनल एड ब्रेक चालू है। तो वो छोड़ दो अभी। व्हाट विल यू डू इन द चैप्टर? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम बहुत सारी चीजें करेंगे कोर्सेज चैप्टर में थ्रू आउट द ईयर। और पहला पार्ट है, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बोला कि यू कैन पार्टिसिपेट इन ग्लोबल हैकेथॉन्स, कॉन्टेस्ट, एंड यू गाइस कैन बी इन गुडी स्वैक्स एंड बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा कॉलेज भी ऑर्गेनाइज करते कॉन्टेस्ट, जैसे कोड शेफ आईआईटी चैप्टर, कोड शेफ एसआरएम चैप्टर, कोड शेफ एमआईटी चैप्टर, एक बहुत सारे अलग अलग चैप्टर है। तो इन लोग के भी कॉम्पिटिशन्स आप लोग पार्टिसिपेट करते हो इफ यू आर मेंबर ऑफ कोड शेफ आरआईटी। तो उसका भी लिंक भेजा जाएगा इन द एंड ऑफ सेशन। एंड यही मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा कि मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी कमिटीज जैसा आपको मेंबरशिप नहीं देना पड़ेगा। तो इट इज फ्री एंड टोटली फ्री। उसके बाद यू कैन अटेंड अ वर्कशॉप, वर्कशॉप के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, अटेंडेंस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर कोई इवेंट या जैसे कोड शेफ के मंथली इवेंट्स होते हैं, कोड शेफ कुक ऑफ एंड कोड शेफ लंच करके, तो अगर उसमें आप जीतते हो तो अमेजोन वाउचर्स मिलते हैं, लड्डूस मिलते हैं। लड्डूस मतलब कोड शेफ का एक पॉइंट्स काउंट कर, पॉइंट्स कोड लड्डूस में काउंट किया जाता है। तो उस लड्डूस से आप कोड शेफ के स्टोर में जाके कोड शेफ के स्वैक्स मर्चेंडाइज बाय कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और हम लोगों ने रिसेंटली लास्ट मंथ की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड वी वेर इन अ
टॉप 100 रनर अप, तो हम लोग को अमेजोन वाउचर मिला 750 रुपीज का। तो मिलता है, एक्चुअल में सच में मिलते हैं वाउचर, so you guys can also win that voucher। तो जरूर पार्टिसिपेट करना कोडशेफ के इवेंट्स में। एंड इसके अलावा वी हैव प्लान टू इनवाइट अ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट इन आवर कॉलेज, एंड उनका सेशंस होगा, अलग अलग फील्ड्स के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में वेबिनार्स होंगे, और यू गाइस कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद दैट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। तो ये भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले, जल्द ही चालू उस पे काम, और कुछ एक्सपर्ट से हमने बात भी करके रखी है। एंड सबसे फाड़ू पॉइंट कोडशेफ RIT चैप्टर का। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है, हमें सीखने में बहुत प्रॉब्लम आता है। एक CS वालों ने लास्ट ईयर ही पढ़ा होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक CXCC वालों को इस साल में है, तो उनको दिक्कत आ रही होगी डेटा स्ट्रक्चर कैसे पढ़े, कैसे करे, आगे कैसे बढ़े, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया तो फैंग में नहीं मिलेगा जॉब, या TCS डिजिटल में नहीं मिलेगा, 3.5 पे भी नहीं मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया। तो उसकी चिंता मत करो, इसलिए हम लोग लेके आए DSS स्टडी ग्रुप। तो क्या होगा, एक्चुअली वीकली बेस्ड हम लोग टारगेट देंगे स्टूडेंट को, एक ग्रुप होगा अपना, जिसमें हम नहीं सिखाएंगे, हम मिलके सीखेंगे। लाइक मुझे भी नहीं आता पूरा डेटा स्ट्रक्चर, या मृणालिनी को भी नहीं आता, तो हम मिलके, सब लोग मिलके सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। वीकली टारगेट रखेंगे, लाइक ए वीक में एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, और इन द क्लैश वगैरह नहीं होंगे लेक्चर्स वगैरह के साथ। फ्री टाइम जब आपको रहेगा तभी रहेगा ये सब, सो उसका भी टेंशन मत लो। ओके, वीकेंड्स में ही मोस्टली होगा। तो इसका टेंशन मत लो, और आपको जो डाउट्स है, हमें जो डाउट्स है, हम शेयर करेंगे। अगर कोई कोडशेफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, DSA वाला, उसको डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो वो ग्रुप पे डाल सकता है। DSA का अलग सा ग्रुप होगा, ऊपर से डिस्कॉर्ड पे भी एक अलग सा चैनल होगा, वॉइस चैनल एंड चैट चैनल। वहां पे हम डिस्कस करेंगे DSA के कंसेप्ट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, एक दूसरे को हेल्प करके साथ में बढ़ेंगे। तो ये भी चीज है, अगर कोई कोडशेफ पे किसी को दिक्कत आते है तो हाँ, वो तो कोडशेफ पे किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम हमने पहले प्रॉब्लम कोडिंग स्टार्ट करा, देन DSA बूम बूम बूम, देन वी आर लाइक गॉन, खत्म, ये हमारे बस की बात नहीं। फिर सबने अलग अलग शुरू किया, ये पढ़ते हैं एरेज ट्रीज, आज तो ग्राफ्स मतलब घोल के पी जाएंगे। फिर उसके बाद पता चला यार नहीं हो रहा, डाउट्स भी नहीं क्लियर हो रहे, क्या करें। फिर हम चारों ने लाइक से बैठ के एक टॉपिक उठाया और उसको पढ़ा। देन वाज लाइक हाँ ठीक है, इसको ये आता है, इसको ये आता है, इसने मुझे वो समझा दिया, वो समझा दिया। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते गए। फिर हम लोग लाइक कॉम्पिटिटिव के और भी क्वेश्चंस करते गए आराम से। तो फिर हमने सोचा कि कमिटी में एक वो भी ऐड करते हैं, DSA सेल्फ स्टडी ग्रुप। उसमें टाइम टेबल बनाएंगे, वीकली टारगेट्स होगा, फिर ये वीक में ये टारगेट अचीव कर लेंगे, देन उसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। फिर ये वीकेंड में विल बी लाइक अरे अभी मुझे एरेज आता है, कुछ भी मार चल गूगल में जाके सीधा सुंदर पिचाई के मुंह पे एरेज मारेंगे। तो इसीलिए वी स्टार्टेड DSA स्टडी ग्रुप। ओके, ओमकार कंटिन्यू, मैंने तुझे सांस लेने का टाइम दिया। तो एक बहुत फाड़ू आइडिया है DSA स्टडी ग्रुप का। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में सीखेंगे, हमें भी सिखाओ, हम भी आपको सिखाएंगे। ऐसा मत समझो कि हम मास्टर है लीड से, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अनिकेत मास्टर है DSA में अनिकेत को आता है अच्छे से, तो अनिकेत हमें गाइड करता है। हेलो। और उसके अलावा हम कंडक्ट करेंगे सेशन। हाँ अनिकेत कंटिन्यू। जेफ बेजोस का कॉल था, नहीं रहने दे। हाँ बोलना अनिकेत। बोला उसको सेशन चालू है। अच्छा देखो ऐसे कॉल आते बीच बीच में। हाँ। जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई। फिर अभी रिसेंटली सेशन के पहले मृणालिनी को सत्या नडेला का आया था कांटेक्ट कॉल। हाँ, तो वो बोली अभी नहीं उठाती, अभी अपना सेशन है। मैंने ऐसे बोला मेरा फिलहाल चैप्टर अभी शुरू हुआ है, आई कांट लीव इट, सॉरी। तीनों को फ्लाइंग चप्पल। तो ऐसे सारी चीजें हैं। और ऊपर से अगर आप मेंबर हो CRC का, CRC क्या है, कोडशेफ RIT चैप्टर शॉर्ट फॉर्म CRC।
तो सीआरसी का अगर आप पार्ट हो तो यू कैन ऑल्सो कंडक्ट सेशन। कंडक्ट सेशन करने से क्या होगा, हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को मतलब 30-40 लोगों के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं, और अगर पार्ट होते तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो बाय कंडक्टिंग सेशन। अगर किसी को प्रोग्रामिंग आता है, किसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक हैकर के समझो जावा के प्रॉब्लम्स है, तो वो हम उसके ऊपर सेशंस रख सकते हैं। और अगर ये छोड़ के भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कंसेप्ट, इस सारे पे हम सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। मोस्टली कॉम्पिटिटिव कोडिंग ओरिएंटेड भी रहेगा, बट उसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की जितने भी सारी चीजें वो भी हम कवर करेंगे कोडशेफ RAIT में। और इसके साथ एडिटोरियल्स भी बनाएंगे, और आपको चांस मिलेगा जब अगर आप कोडशेफ RAIT के चैप्टर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस CRC, यू कैन बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम ऑफ कोडशेफ RAIT चैप्टर। तो जैसे बाकी कमिटीज की नॉन कोर है, वैसे कोडशेफ की भी नॉन कोर होगी वहां पे, और मोस्टली ये नॉन कोर है तो एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहेगी। बाकी की तरह आपको मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें नहीं होगी। मोस्टली आपके टेक्निकल स्किल्स डेवलप हो गए, और मैनेजिंग स्किल्स उसके साथ टेक्निकल स्किल्स दोनों का ग्रोथ होगा। इफ यू वांट टू पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम तो वो भी आप बन सकते हो, और वो जल्दी हम उसके भी फॉर्म्स रिलीज करेंगे, एक कल नहीं तो परसों। आज मेंबरशिप करते, तो उसके लिए आपको मेंबर पहले से होना चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ CRC, देन यू कैन अप्लाई फॉर CRC एग्जीक्यूटिव टीम। तो चलो यार, मैं तो थक गया, ये भी स्लाइड मैंने करवा दी। तो आगे स्नेहा की आवाज में, होपफुली स्नेहा तेरी आवाज में बता दे। नजर लग रही थी। मैं बोर हो गई थी यूट्यूब और ओमकार से। मेंबरशिप फॉर्म चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो जिन लोगों को चलो copy अभी करके रखना है रख दो उसको। मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि मेंबरशिप क्यों लेना है, हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो व्हाई टू जंप इनटू द पूल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इज फन, प्रोग्रामिंग इज एन एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। तो इसको हम मेंटल स्पोर्ट बोल सकते हैं, राइट। तो जो ये मेंटल स्पोर्ट है, इफ इट इज हेल्ड ओवर द इंटरनेट विथ मेनी कंटेस्टेंट्स इन दैट पूल, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो अगर वी आर हैविंग लाइक माइंडेड पीपल डूइंग द सेम स्टफ, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी बढ़ेगा एंड हमारा स्पिरिट भी बढ़ेगा। सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट एंड मूव इनटू दिस डिलिशियस जर्नी। मेंबरशिप के लिए लिंक हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज उस पे जाके रजिस्टर करना है। एट द एंड ऑफ द सेशन हम वो भी बताएंगे कि उस लिंक में होगा क्या, उसमें कैसे स्टार्स कैसे कलेक्ट करता है, प्रोफाइल कैसे डेवलप करते हैं। एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू पीपल, so do not miss any updates from college chapter and become a member and receive regular updates about the contest, events and workshops. चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो सबको मेंबरशिप लेनी है, ठीक है। ओके, ये मेरा वाला है क्या? हाँ ले लो, मुझे बिल्कुल आलस आ रहा है। ओके स्टार्ट कर दो। ओके, सो स्टेजेस ऑफ कोडिंग चैलेंजेस। So we have decided to keep 3 stages, like we will be having monthly and weekly challenges for coding contests, and also after those coding contests we'll be keeping some informative sessions on that, in which we will be publishing our editorials on YouTube, or we will be giving you solutions on Discord and all. So firstly वो यहाँ पर रहेंगे बिगिनर फ्रेंडली चैलेंजेस, जो कि बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी DSA स्टार्ट किया है लर्न करना, या फिर जिन्होंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग अभी तक देखा नहीं है, सीखा नहीं है, या फिर जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। सो इट विल बी बेस्ड ऑन सिंपल अरेज और इफ एल्स स्टेटमेंट या व्हाइल लूप्स वगैरह यूज़ करके जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रहेगा इंटरमीडिएट चैलेंजेस। सो इन इंटरमीडिएट चैलेंजेस विल बी हैविंग क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ DSA। तो DSA मालूम है ना लोगों को इधर क्या होता है? हाँ, इडली डोसा अचार। नहीं वो वाला DSA नहीं। ओके, सो DSA इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिनको मालूम नहीं रहेगा। सो DSA वाले क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें उसके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एंड द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन
इंटरव्यूज़ लाइक द क्वेश्चन विच आर आस्क इन इंटरव्यूज़ इन वेरियस कंपनीज, सो वो वाली क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो आप लोगों का भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. इस सुश्रुत को असाइनमेंट लिख के मत देना, मुझे एलियन बुला रहा है. उसने कुछ और बोला होगा, छोड़. Okay, then we'll be having difficult level challenges. These are for the pro coders जो already सीख चुके हैं DSA वगैरह या फिर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये रहेगा. एंड इसमें हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन डालेंगे फॉर प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So, सब सांस ले लो. The most sizzling, spicy topic, most asked, because when we had put the like notice or we had marketed about that कि we are starting a code chef chapter, so our DMs, हमारा like chats were full with how to be a part of the non-core, how to be a part of code chef chapter. So here is your answer. So I'll talk about the tech team. I'll start with the manager one. So the tech team will have a lead. So the lead of the tech team, they have to coordinate with other members of the tech team. That is the databases research, coordinate research developer CP guide. And they have to make sure that everyone is coordinating, everyone is like informed and doing their work on time. They have to review their work. जैसे कि किसी ने कुछ सबमिट किया, like डेटाबेसेस वाले ने डेटाबेस सबमिट किया, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं. वो सब रिसर्च वाले का कंटेंट चेक करना पड़ेगा. बेसिकली लाइक मैनेजर वाला काम है जो सब कुछ मैनेज करेगा उसमें. सो नाउ कमिंग टू अस द मैनेजर में वन विल बी डेटाबेसेस. So what the databases person will do, he'll create and maintain the databases of the students who are participating in the contest. He'll keep track of who is attending what workshop, who is attending what contest, what were their scores, who were the winners in that contest, because वो सब record हमें अपने पास रखना पड़ेगा. We have to submit it to the CodeShip, and at the end of the year, end of the semester or something like that, they'll be given gifts about like the pro coder or some year coder of the year like this. Then okay, databases one must be like proficient with Excel, database management, and should know how to keep tracks of things. So the research person and management would do what they will do is they have to keep track of everything, like the contests that are happening in other platforms, the hackathons that are being conducted in other platforms by other MNCs, other corporations, and let us know. We will check out that if that contest or hackathon or webinar seminar is good and eligible for our college students, then we will like tell you guys to participate in that. So they have to keep track of all those things. They also have to bring content for the social medias and all. So for that, the research person should be active on social media sites, blogging sites, and LinkedIn and all, so that they are well aware about everything that's happening around. So the coordinator has to schedule meetings, schedule posts, like what content will go on our social medias at what time of the year. Has to go through the feedbacks of all the sessions and tell us that where we were lagging and what we can improve, and about the certificate and prize distributions and all that. Okay, so the coordinator has to have some analytical skills and all. Aniket, can you please explain? So next is the tech experts domain. So mostly all of you will be interested into this domain only. This is the best technical domain. So here also we'll be having a researcher, then developer, a CP guide, and Michelin star coders. So firstly about the researcher, तो ये वाला researcher manager वाले research से अलग होगा. He will be collecting all the questions for the DSA series and our competitive programming contest which will be holding. So उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड डेटा, उसका कलेक्शन का काम है, वो सब रिसर्चर करेगा. उसके बाद he will be also helping the editors by giving them contents for editorials and all. So researcher should have some basic knowledge of DSA, like not if it's okay if he's not into competitive programming, but he should have some knowledge about it, and he should also be able to search some questions and active on different coding platforms also.
Then next comes is the developer. So developer will be like web developer who will be having some knowledge of HTML, CSS, JavaScript, React वगैरह. तो वैसे talented लोग तो है हमारे कॉलेज में बहुत सारे. So also developer will be he will be hosting the websites and any blogging sites if he wants to, and any other things while we are hosting anything on the website. So वो काम सब developer करेगा. Then after that we have the CP guide. So CP guide should be having all the knowledge about various coding platforms. उसके बाद सारे programming languages का knowledge भी होना चाहिए. Then again the CP guide should be involved into coding, like 3 to 3 months का experience होना चाहिए उसको, because he will be guiding the other people in the group. Then comes the Michelin Star coders. So this is actually a pair of coders who will be appointed monthly, like 2 people रहेंगे. तो उनका मंथली परफॉर्मेंस चेक करेंगे, लाइक जो भी कंटेस्ट रहेंगे उसमें जो कि टॉप परफॉर्मेंस करेंगे उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे. और ऐसा भी नहीं कि एक मंथ के लिए ये सेट करके रखेंगे. अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू वी कैन कीप देम टू. सो 2 coders will be there who will be helping the people in Discord and other servers and solving their doubts. Okay, next the non-tech team. ओमकार बीच पे बैठा हो. तो आता है नॉन टेक टीम के बारे में. हेलो, आवाज आ रहा है? ब्रेक हो रहा है. पे बैठा हो. अरे इतना सा प्लान बन रहा था. हाँ, स्नेहा बोली. तो नॉन टेक में अपने पास 2 है उसमें पार्ट, एक क्रिएटिव और एक. तो क्रिएटिव करना है आप लोग, वीडियो एडिटिंग का एंड ग्राफिक डिजाइनिंग. तो वीडियो एडिटर को एक्चुअल में क्या करना है. तो वीडियो एडिटर को कोडशेफ का यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल में हम हर एक कंपटीशन के बाद उसके सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे एंड वो सॉल्यूशंस को थोड़ा टचअप वगैरह देना है. वो स्टार्टिंग इंट्रो वगैरह लगाना है, एंडिंग लगाना है. तो जो कुछ थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग होगा, इंस्टाग्राम रील्स का, यूट्यूब वीडियोस का, तो वो चीजें वीडियो एडिटर को करनी है. तो देयर विल बी 2 वीडियो एडिटर इन दिस डोमेन एंड उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर आता है. तो ग्राफिक डिजाइनर, तो वीडियो एडिटर वालों को एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज चाहिए प्रीमियर प्रो के बारे में या अदर कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में. उसके बाद आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग. ट्रेनिंग में हमें क्या कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइन, कुछ आप लोग देख रहे हो. कोडशेफ का थीम है, वो हम लोगों ने मिलके बनाए. मृणालिनी का आइडिया था कि रेट्रो थीम रखेंगे और बहुत लोग डीएम कर रहे थे कि ये थीम बहुत अच्छा है करके. मतलब हमें थोड़ा सा कूल लगा. ऐसा स्टोरी बताओ. कमल और बोरी लगा बोलना क्योंकि ये तो सब लोग थीम रखते. तो क्रिएट नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली हमें बहुत क्रिएटिव रखना है. तो यू कैन शो योर क्रिएटिविटी ग्राफिक डिजाइनर. तो आपको इन डिजाइन आना चाहिए, इन डिजाइन ही आना चाहिए ऐसा नहीं, बट कैनवा का अच्छा नॉलेज चाहिए. कैनवा तो कोई भी कर लेगा, बट कैनवा के बारे में अच्छा नॉलेज चाहिए. उसके अलावा इन डिजाइन के बारे में है. तो इन डिजाइन और कैनवा भी आता होगा, तो बी द ग्राफिक डिजाइनर फॉर द कम्युनिटी. ये हो गया क्रिएटिव डोमेन्स के. अपने कॉलेज में बहुत सारे टैलेंटेड वीडियो एडिटर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स है. also ग्राफिक डिजाइनर यूआई यूएक्स पे भी और वीडियो एडिटिंग पे भी वर्कशॉप रख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं, पूरा टेक ओरिएंटेड भी होगा, थोड़ी नॉन टेक्निकल भी चीजें होगी जैसे वीडियो एडिटिंग, यूआई यूएक्स या एआर वीआर. so you guys can organize workshop events related to that also, or you will be the lead for that. ओके. तो ये हो गया क्रिएटिव डोमेन के बाद. आप नया बताइए डिजाइनर के बाद. मूविंग ऑन टू द डिजाइनर्स डोमेन. इसमें होगा एक एडिटर हु विल राइट ब्लॉग्स फॉर अस. ऑल्सो ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद द रिसर्च टीम और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इवेंट्स के लिए पीपीटीज और क्वेश्चन सेट करने का काम एडिटर का होगा. द पीआरओ विल मेक स्पैम मैसेजेस क्योंकि दिस इज एन ऑनलाइन ईयर, सो द स्पैम वाला प्रोसेस विल बी वेरी टीडियस. इसलिए फॉर दिस ईयर editor and PRO will work coordinately. Also, moving on to the social media handler, we have many social media accounts on Instagram, like Instagram, LinkedIn,
एंड यूट्यूब। तो इन सबको मैनेज करने का काम सोशल मीडिया हैंडलर का होगा। तो वी आर डन विद दिस स्लाइड। अगर एग्जीक्यूटिव टीम में किसी को डाउट है तो डू लेट अस नो। तो देखो ये है हम लोग के सोशल हैंडल्स। इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालेंगे हम लोग। व्हाट्सएप तो हमारे नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए, सारे इवेंट्स के अपडेट सबसे पहले व्हाट्सएप पे आएंगे। और डिस्कॉर्ड थोड़ा सा कूल बनने के लिए डिस्कॉर्ड चैनल भी है, तो डिस्कॉर्ड में गेमिंग नाइट्स होगी या मूवी नाइट कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा गेम स्ट्रीम वगैरह किसी को करना है तो वो भी कर सकते हैं। एंड मोस्टली जो मैं बोला डीएसएस स्टडी ग्रुप, सो डीएसएस स्टडी ग्रुप का एक अलग चैनल होगा जिसपे हम लोग डाउट वगैरह डालेंगे। और डीएसएस में बाकी के भी डाउट्स हम लोग डाल सकते हैं डिस्कॉर्ड चैनल पे। तो डिस्कॉर्ड के भी अपने अपने कुछ तो बहुत तो क्या सर्वर तो स्कैनिंग आपको मिल जाएगी अगर ये ग्रुप पे मतलब हो गए तो सारे लोग होगी। पर अगर कोई नहीं वो भी और को तरको के सीआरसी के पेज को फॉलो करो। एंड उसके बाद है लिंक्डइन। तो मेरा आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? अटक अटक के। हाँ, थोड़ा मियामी में नेटवर्क प्रॉब्लम है। चैट बॉक्स में बता दो। I'll tell you what it is. So, do follow Courtship chapter on social medias. Like Instagram पे तो तुम लोग follow करते हो and WhatsApp groups में तो हो गई, तभी तो मिला information कि आज interaction है, right? Then do join the Discord. Discord में we'll be conducting games, movie nights. If you suggest any good movies, we're always ready to watch it together. Then DJ nights, गाने बजा के घर पे नाचेंगे अपने अपने, okay? And on Discord only we will create a channel for DSS Self Study Group where we will put weekly updates and resources from where you can practice and learn. And then comes the LinkedIn page. The LinkedIn page is Courtship RAIT chapter. So you can join that, and soon we will be launching our YouTube channel where we will be posting editorials, the solution videos of all the contests that are being conducted. So do follow us. How to get into team? टीम ज्वाइन करने के लिए पहले यू पीपल हैव टू टेक मेंबरशिप एंड देन वील पुट ऑन द इंटरव्यू का मैसेज। हाँ, registration form like. So any other question? फिर से एक बार मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पैसे भरने नहीं है सीआरसी के लिए। सबके हिस्से का पैसा you can welcome. सबके हिस्से का पैसा हमने जेफ बेजोस से लेके भर दिया है। ओके। और हाँ, सारे कमिटीज के लोग भी ज्वाइन कर सकते। हाँ, राइट। ऐसा नहीं है कि तुम कमेटी के पार्ट भी हो तो ज्वाइन करो। हाँ, वी आर ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि तुम इस कमेटी में तो नहीं आ सकते। कोई भी कमेटी के हो, कोई भी ईयर के हो, आ सकते हो। एक बार मेंबरशिप का फॉर्म फिर से भेज दो। क्वेश्चंस कैसे टाइप के होंगे, तो एक बार उनको कोर्टशिप का वेबसाइट दिखा दे क्या? क्वेश्चंस कैसे टाइप के होंगे, राइट? क्वेश्चंस हम लोग सोच रहे हैं कि पहले बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, कॉन्टेस्ट जो कॉलेज में होंगे, देन वी विल टेक इट टू इंटरमीडिएट, देन टू एडवांस लाइक एंड ऑफ द ईयर। तो उससे पहले यू कैन लाइक प्रैक्टिस ऑन कोर्टशिप और एनी लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग। वहाँ पे काफी बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं। यू कैन गो एंड चूज द ऑप्शन इजी एंड मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अभी। हाँ, राइट। वी विल प्रोवाइड यू मटेरियल्स टाइम टू टाइम। Which language? You can code in any language. जो language तुम्हें पसंद है, whichever language you are comfortable with, you can code in that language. There is no language restriction in any competitive coding around the world. सिर्फ React और Node हो गया। हाँ, वो सब frameworks वगैरह नहीं है। Competitive code programming language. जो do membership form only applicable. लगेगा इसको पता नहीं। No, actually you have to fill the membership form to join the team. Team में रह के ऐसा नहीं। Everyone can fill the membership form and get Courtship RAIT का membership.
It is not restricted to anyone. एंड वो एग्जीक्यूटिव टीम का जो हमने बताया उसमें आने के लिए उसके फॉर्म्स अभी हम लोग रेडी कर देंगे. सो टुमारो द फॉर्म्स विल बी आउट एंड वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस. किसी को एग्जीक्यूटिव टीम के रिगार्डिंग कोई डाउट और जो कोई Okay, I will once wait. और जो कोई भी मेंबर बनेगा तो उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहेगा कोडशेफ के पोर्टल पे. तो हम लोग मैन्युअली नहीं कर रहे कि मेंबरशिप ले लो करके. तो कोडशेफ का अलग से फॉर्म है, उस पर हम लोग को चैप्टर सिलेक्ट करना है. आप ऑफिशियली आपका रिकॉर्ड होगा कोडशेफ के डेटाबेस में कि यू आर मेंबर ऑफ. Okay, so this is the membership form. कोई link भेज दो, मैं भेज देती हूँ. This is the membership form. It is on the official CodeChef ka site. So for that you need to have a account on CodeChef first. Like my account is here. It is Sahu Mirnalin. So for the first is college name. College name में go and write RAIT. RAIT है इसमें. RAIT DY Patil deemed to be university. Then chapter का name is CodeChef RAIT chapter. वो अपने आप ही आ गया. So my name is okay. My college roll number, my CodeChef user ID. तो फिर तुम्हें उसके लिए user ID पहले से बनाना चाहिए CodeChef में. Then is my email ID, my phone number, then my branch department, then my year of graduation, and then submit. फिर तुम्हें mail आ जाएगा. Then you are officially a member of CodeChef RAIT chapter. And उस पे जो mails आएंगे and then I think you will be given some portal or something. I don't know about that, but you will be receiving notifications about everything that we will be uploading on the CodeChef. हमें जो portal दिया गया है, we will upload there and schedule all the meetings, all the workshops, all everything there. Then you will get notifications कि ये वाला contest हो रहा है, ये वाला chapter हो रहा है. You will receive mails and all. लॉगिन इज इम्पोर्टेंट. Yeah. मतलब पहले से ही कोडशेफ आईडी होना जरूरी है. तो फॉर दैट यू हैव टू प्री लॉगिन एंड देन फिल द कोडशेफ RAIT फॉर्म. Yeah, I already have an account, so I didn't show you how to. Should I show them how to make an account? Okay, जो ओमकार ने बोला स्नैकडाउन अभी चल रहा है, so स्नैकडाउन is like going on now. You can participate in स्नैकडाउन on CodeChef का official website. So for creating account, new user पे जाओ CodeChef. Wait. CodeChef का website is codechef.com. You can go there, make your account using new user करके. उधर you can log in with your Google account, GitHub, Facebook, anything, or you can create your account like manually by your own self. So बहुत easy है. बस ये डालना है, password set करना, and then your account will be created. And then go to the membership form and then fill the membership form. Don't worry, we will provide these links officially on Discord, WhatsApp, everywhere. So don't worry अगर if you're not following now. स्टार्स कैसे कलेक्ट होते हैं? जैसे जैसे यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू गेट स्टार्स. अगर टॉप 100 में आ रहे हो कोई इवेंट में, तो आपको स्टार्स वैसे वैसे मिलते जाएंगे. When you got 3 stars, we participated in contest and gradually stars मिलते गए. So process में आता रहता है स्टार्स मिलना. एक पॉइंट में 0 ही था. Yeah, हमारा 0 ही था. I'll tell you, हमारा 0 अभी क्या 7 महीने पहले भी 0 ही था हमारा. अभी मिला ये 3 stars. It's just a part of the process. It's not a big deal like stars collect करना. इस साल के एंड में तुम्हारे पास भी 5-6 stars हो गए. Don't worry. बस अभी रेगुलर एंड कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट. या हाँ, और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स है. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ codechef.com पे ही करो कोडिंग. हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोडिंग निंजास वगैरह वो सब भी है, तो उधर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो. वी जस्ट हैव टू डेवलप आवर स्किल्स. एनी अदर डाउट्स? एक बार वीडियो दिखा रहे थे सबको वापस.
स्टार्ट। मेरा हाँ, रैंक के बेसिस में स्टार मिलेगा। लाइक जरूरी नहीं है आफ्टर अ कंपटीशन यू विल गेट अ स्टार, डिपेंड्स ऑन योर ग्लोबल रैंक। उसके लिए Yeah, हम लोग right. अभी एक सेशन रखेंगे, उसमें सब एक्सप्लेन करेंगे कोड शेफ के कैसे रहते हैं कॉन्टेस्ट, उसमें बता देंगे। Every contest has different criteria for a star. So you have to like ऐसा नहीं कि participate कर दिया and star मिल गया, ऐसा तो फिर सबके पास हजार हजार stars होते हैं। No, you have to perform well. Well मतलब like 1 star के लिए minimum perform 2 questions करना 6 में से is enough I think, है ना निकेत? हाँ, Hmm. So someone is asking that DSA topic we have to learn every day. No. You can start with basic questions like beginner friendly competitive programming के भी काफी सारे contest होते हैं। तुम लोग कोई भी website में जाओ competitive programming के, उधर जाके easy level select करो, you can solve the questions very easily. थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लाइक ना जरूरी नहीं है, बट ठीक है हो जाएगा। लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें डीएस से आना चाहिए तभी होगा। नो, व्हेन आई डिड माय फर्स्ट 2 कॉन्टेस्ट आई थिंक आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट डीएस और एनी टॉपिक। बिगिनर लेवल वो में जैसे डीएसए की जैसे स्टार्ट जरूरत ही नहीं है। करोगे तुम लोगों को फिर वो प्रैक्टिस होता जाएगा। डीएस ऐसे 1-2 दिन में कवर नहीं हो सकता, उसके लिए हाँ 2 राइट। मंथ्स तो परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और एवरी टॉपिक करना ज़रूरी नहीं है, जो तुमको इजी लगेगा अच्छा लगेगा वो टॉपिक पकड़ के चल सकते हो। उसको नीचे रखने का नहीं कभी भी। और हाँ, जो कॉन्टेस्ट है उसमें अगर आप टॉप 100 टॉप 200 में आते हो तो कोड शेफ से आपको प्राइस भी मिलता है, वाउचर्स मिलते हैं, लट्टूस मिलते हैं। मेरा आवाज आ रहा है क्या अभी? आ रहा है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट स्वराज, एक रेटेड रहता है और एक नॉन रेटेड। सो यू माइट हैव डन द नॉन रेटेड वन। जो रेटेड रहते हैं वो वीकली या फिर मंथली ऐसे आता रहता है उनका एडवर्टाइजमेंट। हर कंपटीशन का रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लिया आपने तो आपको स्टार मिल जाएगा। लाइक दिस इज अ प्रोसेस, धीरे धीरे स्टार मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेस्ट यू टेक पार्ट इन। स्वराज व्हिच प्लेटफॉर्म डिड यू यूज? लाइक कौन से प्लेटफॉर्म पे था कल का कॉन्टेस्ट? तो स्ट्रेट कर कर्म नहीं अरे कर्म नहीं। कोडशेफ राइट? कोडशेफ का हाँ वीक रेटेड एंड नॉन रेटेड होता है। रेटेड वाले यूजुअली वीकेंड में होते हैं। डू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। और एक बात कि स्टार्स के लिए सिर्फ न स्टार्स के पीछे मत भागो, हाँ, एक्चुअल लॉजिक डेवलपमेंट करो, बिल्डिंग करो और फिर सॉल्व करो। नहीं तो नेट से उठा के कॉपी पेस्ट कर डालोगे और 5 स्टार आ गया कोड शेफ पे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। वैसा आ भी नहीं सकता। हाँ, वो भी है फिर भी। और किसी को कुछ डाउट्स? और एग्जीक्यूटिव टीम के बारे में इंटरेस्टेड हो ना सब लोग? सबको फॉर्म भरना है, ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे तो अपने में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हाँ, इसका तो चिंता नहीं। अब मुझे सच सच बताओ, मैं जो बोला उससे कौन को बोर हुआ? क्योंकि यार स्नेहा और मृणालिनी बोलते यार ओमकार पक्का मत चल। स्नेहा तो बोर दिख रही है देख बहुत। देख ऐसा नहीं होता नहीं, मैंने हंसी कंट्रोल की है। मैं अगर कैमरा घुमाऊंगी ना तो यू विल सी माय ब्रदर डांसिंग। है। डेडलाइन नहीं है ब्रो, हम लोग बता देंगे। कोई छूट गया तो उसको भी ले लेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। मतलब क्वेश्चंस एग्जांपल देना है इसलिए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अरे तू हे सॉल्व केलंय का कधी कोड शेफ किंवा हॅकर रँकचा क्वेश्चन कधी? हा ना. ॲनाग्राम फ्रॉम ऐकले असशील ना, पॅलेंड्रोम करायचं स्ट्रिंगला, तर हाँ, मैं त्या तुला टाईपचे present क्वेश्चन करून असतात। दाखवतो एक। हाँ हाँ बिगिनर लेवल पे एरे, स्ट्रिंग, लूप इसी में रिवॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हाँ। और अगर किसी ने हैकर का वो हमने ऑर्गेनाइज किया था, वो भी हम चारों ने मिलके ही किया था। ये देख ऐसे तो- बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब प्रैक्टिस हाँ। के लिए तो। लेकिन जो रेटेड कंटेस्ट रहते हैं ना उनमें थोड़े से टफ रहते हैं। तो वही मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है, देन वो इनपुट बताते हैं क्या रहेगा, देन आउटपुट
फिर वो सैंपल वाला टेस्ट केस देते हैं, फिर वो पास हो जाएगा तो फिर वो आउटपुट आ जाएगा, तो फिर सबमिट कर सकते हो। और इतने सारे लैंग्वेजेस है, तो आप लोग किस में से भी कोड कर सकते हो। ये तो सिर्फ कोड शेफ का हुआ, ऐसे बाकी प्लेटफॉर्म भी है, सबका सेम ही रहता है। हाँ, और JS में भी कर रिएक्ट दिख रहा है क्या ओमकार तुझे इधर? नहीं यार, उससे अब करना ही है JS से रिएक्ट, करना वो उसे पड़ेगा। रिएक्ट से प्यार हो गया है। सो क्वेश्चंस हमने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, किसी को डाउट्स ही नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, सब लोग बोर हो गए। अनिर्बन जल्दी जल्दी बहुत सारे अनिर्बन ही राइट यस ना? विश्वदीप, यू आर राइट। भट्टाचार्य। C++ इज वेरी फास्ट। नहीं, अनिर्बन ने मुझे टेक्स्ट किया था कि हैकर अर्थ पे बहुत कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करो, तो हैकर अर्थ की कोच ही हम करेंगे और हैकर अर्थ ही करेंगे। तो अब टेन मत ले, कॉन्फ्रेंस होंगे एक के बाद। ओमकार इज द हैकरथ एम्बेसडर फॉर आवर कॉलेज। है क्या अभी? पाइथन CPP जिसमें भी करना है करो, मैं C++ में करूंगी मरते दम तक। C++ का हेडर फाइल बता चल। ऐसा नहीं कर यार। आउच। चलो तो और किसी को डाउट्स कुछ? अरे निष्ठा भी है इधर, निष्ठा हेलो। हेलो। BSc वाले पहले ना? भी हाय हाँ, बोला था। वो तो अनिकेत प्रोग्रामिंग का में भी ध्यान है ना। पता नहीं कहाँ हाँ। रहता है। निष्ठा गाइड अस प्लीज, गाइड अस ब्लॉक। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आई विल ट्राई माय सेल्फ टू, बिकॉज कोड शेफ मुझे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी इंटरेस्टेड जब अनाउंस किया कोड शेफ आर्या आईटी चैप्टर है, सो लाइक ये सही है, ये नई चीज आई है। पूर्वजा मिलके करेंगे, विल ट्राई टू मेक इट इजी। बिल्कुल। हेलो। डेवलपर्स में से भी लोग हैं, पूर्वजा भी है। भाई ऐप डेवलपर्स आ गए अपने मीट में, हाँ, अपना वैल्यू बढ़ गया। अक्षय है, निष्ठा भी आ गई, निष्ठा आ गई, अक्षय आ गया, पूर्वज आ देवांग भी गई। है, वो भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता है, देवांग बर्थवा। और बोलो, सेकेंड ईयर वाले भी बोलो। मैंने बोला ना, सेकेंड ईयर जो वालों से बोलेगा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना, कॉलेज खुला नहीं तो कभी इंटरेक्ट हुआ नहीं, वो लोग भी नहीं खोलेंगे मुंह अब। इसके आ गई। कॉलेज शुरू हो रहा है। हाँ, Oops. स्नेहा एग्जाम बहुत खुश है, स्नेहा बहुत खुश है। आई हैव रीजंस। यस यस, कॉलेज टेंशन मत लो, MU नहीं खुलेगा होपफुली। नहीं, बिल्कुल लेट नहीं है, हमने भी इसी साल स्टार्ट किया था। अरे किक स्टार्ट में पार्टिसिपेट करके देखो, कोई फेक अकाउंट से पार्टिसिपेट कर दो, अगर ऐसा लग रहा है कि अरे क्या होगा, बदनाम हो जाएंगे मार्केट में। नहीं, क्वेश्चंस देख लो जाके एक बार उधर का, मजा आएगा। और देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि तुम लोग इंटरेक्शन में आ गए हो। अगर ऐसा नहीं नहीं किया है कि तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी डोमेन्स भी है अच्छे अच्छे इसमें। हाँ, तो अपनी skills अगर दिखाओ नहीं, इधर देखो आके, देखो फिर अच्छे पोस्ट मिलेंगे, लिंक्डइन वगैरह पे डाल दो। देखो, कुछ टेक यूट्यूबर्स बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, तो ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट ट्राई तो करो, अगर नहीं जम रहा है फिर छोड़ दो। मुझे भी नहीं जम रहा था, फिर
मेरे मेरे साथ एक टैलेंटेड टीममेट्स है मिरना लेंस में। हाँ, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। हम बस तो बोल दे सबको। तो तो ऐसे टैलेंटेड लोग के मिलने के बाद जमने लगता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। अगर नहीं किया तो देखो टीसीएस में जॉब नहीं मिलेगा। अरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लाइक हाँ हाँ हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लाइक तुम लोग जब भी प्लेसमेंट्स के लिए भी जाओगे तो फिर उसके राउंड्स क्लियर करने होंगे ना, तभी भी तुम्हारे साथ 10 लोग तो होंगे उधर उस राउंड्स में, तो फिर 10 नहीं, उनके साथ 1000। तुम्हारा मतलब मैंने डरा दिया आप सबको। तो फिर होंगे 1000 नहीं होंगे, चलो 10 ही लोग हैं तुम्हारे साथ, ओके। तो फिर उनके साथ तुम्हें कंपटीशन करना और वो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तुम्हें, जो कि डीए से रिलेटेड होंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अगर तुम वो इंटरव्यू राउंड्स क्लियर नहीं करोगे तो फिर एचआर राउंड तक कैसे जाओगे? इसीलिए लाइक प्रैक्टिस होना चाहिए। तुम सारे क्वेश्चंस पहले से फेस करके जाओगे तो तुम्हारे पास एक बेसिक आइडिया होगा कि अच्छा ऐसा पूछ सकते हैं। अब तुमने गूगल का कोड जैम किक स्टार्ट कर लिया, अटेम्प्ट क्वेश्चंस देख लिए, उस पर थोड़ा रिसर्च कर लिया, दिमाग लगा लिया, तुम्हें बाकी कोई लाइक कंपनी के क्वेश्चंस इतने हार्ड तो नहीं लगेंगे ना ऑब्वियसली। नीरू निष्ठा को असाइनमेंट्स लिख के देने वाली है। निष्ठा हमें हेल्प करी है पब्लिसिटी में। निष्ठा को तो देख, थैंक यू निष्ठा। उसको हम लोग कटा हुआ है। फेस ऑफ द चैप्टर बना देंगे। नहीं, अभी कॉम्पिटिटिव लीड यही, अपने में भी यही रहेगी निष्ठा ही। सीपी गाइड इंटरव्यू निष्ठा प्लीज एक्सेप्ट करो। ऑफर कर रहे। अरे भाई साहब ये सही है। अप्लाई करो बगैर ऑफर लेटर आया, वाह नाइस। ओके, I'll definitely apply CP गाइड के लिए। हाँ, तो हैकर रैंक पे भी अगर करते हो 5 स्टार खुद से करते हो तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट जॉब। मतलब टीसीएस डिजिटल के जो कोडिंग क्वेश्चन है तो ऐसे ही फोड़ दोगे तुम लोग अगर खुद ओमकार से किया है। टीसीएस डिजिटल के पीछे पड़ गया है। अरे यार, अपने कॉलेज में वही ड्रीम कंपनी है ना। सिस्को ईएक्सटीसी वालों के लिए नहीं होता ऐसा ठीक सुना। है ठीक है ना, निष्ठा ही स्टैंडर्ड बढ़ाएगी अब कॉलेज का। कॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ये क्या प्रेशर है। नहीं, प्रेशर कुछ नहीं है, सिर्फ जोक्स अपार्ट मजे के लिए बोला। कोई सीरियसली मत लो। तो बोलते हैं इस सीआरसी वाले बोलते हैं कि सीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीपी एक्सपीरियंस है। हाँ, माइंड गेम। और यार इंटरैक्टिव बनो यार, हम लोग इतना हंसी मजाक कर रहे हैं थोड़ा तो। सही बात है, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत। मैं पक गई इन तीनों की शक्ल देखकर। किसी को कुछ भी नहीं बोलना। और किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस है क्या? नया क्लब खुला है तो कि बाकी के कमिटीज से और कुछ हटके करना है, क्योंकि कमिटीज कैसे पूरा कॉलेज के अंडर आता है, एचओडीज परमिशन करेंगे तभी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि हैकेथॉन हाँ, करेंगे ना, वो भी करेंगे। गेम इवेंट्स भी करेंगे। शायद वो गेमर बॉय नहीं है इस इवेंट में। अरे ओमकार कितने यूट्यूबर्स को जानता है पता है क्या? उसका इंस्टा डीएम देखना बस। हाँ यार, हाँ ये ट्रू है, मुझे अक्षय के मैसेज आते हैं। अक्षय, वो जेएस वाला अक्षय। हाँ, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, इसमें आते हैं। और हाँ, इस वैक्स जीतने के बाद फ्लेक्स भी कर सकते हो मेरे जैसा। इंस्टाग्राम एमएलएस का कुछ हैकेथॉन पार्टिसिपेट किया तो स्वैक्स डालो, फिर गूगल क्लाउड का भी डालो, फिर ऐसे डालते रहो, फ्लेक्स तुम लोग भी कर पाओगे
पार्टिसिपेट करो। और किसी को कुछ डाउट है? खुद डाउट भी चलेगा। हाँ, जैसे कि स्नेहा ने हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या खाया। फ्लाइंग और चप्पल वैसे टू योर खुद प्लेस। डाउट स्नेहा सॉल्व करेगी। स्नेहा की कैपेसिटी के लिए हम लोग ने खुद डाउट्स रखे हैं। स्नेहा पे एक नो इवेंट भी ऑफेंस। रहेगा बाद में। हाँ, स्नेहा के उड़ा रहे most हो? पता है ना? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए। चुप कर। हाँ, स्नेहा फैन है, मतलब अच्छा, स्नेहा का फैन बाय। फॉलोइंग ज्यादा है। अरे यार क्या यार, बाय कर रहे हैं हम लोग को, इग्नोर। कोई पूछ ही नहीं रहा कोई कुछ। तो चलिए बंद करते हैं यहाँ पे। फ्लाइंग चप्पल, अरे अरे फ्लाइंग वो चप्पल नहीं ऐसे पता। चप्पल उड़ा के मारना, उसको बोलते फ्लाइंग चप्पल। मेरा आविष्कार है वो। वो स्नेहा के घर पे मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं पता होगा। दैट्स फाइन। सब स्नेहा के फैन ये है इधर चप्पल का शायद। दुकान है। सबको फ्लाइंग चप्पल। बाय। वो भी उसको स्वैग्स के साथ ही आया था। अच्छा लग रहा है। सिद्धे कुछ तो पूछ रहा था शायद। ये बंद किया कोडिंग के मतलब लिए वील थोड़ा ऑर्गेनाइज पकड़ के सेशन, रख मतलब नीचे जो मत। लैंग्वेज आपको सीखना होगा ना, ठंडा हो उसके लिए वी कैन कंडक्ट सेशन, वरना जो भी प्रेफरेबल लैंग्वेज है यू कैन गो विद इट फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग। और एग्जीक्यूटिव टीम के और लिए एक भी हमने अभी के लिए डोमेन्स रखे हैं। अगर आप लोगों को कुछ और स्किल्स आते हैं या फिर कोई और आपको पोस्ट वगैरह डिसाइड हो रहा है आप लोगों में, तो वो भी हमको बता सकते हो आप लोग ग्रुप में अभी। तो वैसा हम लोग और रखेंगे। एक ऐड ब्रेक जिन लोग को C++ नहीं आता, कोड ओएस का C++ वर्कशॉप अटेंड करो। कोड ओएस क्या है अब वो भी बहुत बता दे लोगों, अब इनको। कोड ओएस इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्टार्टअप डेवलप बाय हम लोग। फाउंडेड बाय तो ओंकार। हम लोग, हाँ मतलब डेवलप बाय मी, बट मृणालिनी स्नेहा निकेत प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और पूर्वजा भी है, तो वो भी। तो फिर हम लोग अटक गया क्या? हाँ, ओमकार अटक गया। क्या सेल्फी पोज में अटका है ना वो? तारीफ हेलो। कर रहा था यार, वो हमारी अटक गया। व्हाट डज प्रेसिडेंट डू इन कोड शेफ, बता दे। तू रुकना, तुझे बताती हूँ मैं। कुछ नहीं करते तुम लोग, मेरी उड़ाते हो बस, बेशर्मो। पर्सनल सेशन अब होगा खुद की क्या प्रेसिडेंट। तारीफ करूँ मैं। देखो प्रेसिडेंट के अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है सब प्रिंसिपल वगैरह के साथ में, उसको कुछ बोलो हाँ, मत। मैं रोज सुबह उठ के प्रिंसिपल को मेल लिखती थी 1 हफ्ता। शिष्टर ट्रोल करना है इधर हमें। अच्छा निकाल है ना, दूँ। वो पब्लिसिटी तो कर रहा है अपनी। सुश्रुत तेरे लिए अवार्ड रखेंगे एक, जितनी उड़ानी है उड़ा। अब बोलने की जरूरत है क्या? हेलो हेलो हेलो, हेलो हाय। आई एम अंडर वाटर। पहले ओमकार को निकालो मीट से। यार यार क्या यार, रिस्पेक्ट करो यार थोड़ा बहुत। उसने मना किया था ना, वो मियामी जा रहा है, आज मत रखो इंटरेक्शन। वही ना। अब वो कुठे मियामी मियामी फ्लोरिडा। करना है अभी क्रिकेट, अभी लाइट तो आया करते हैं पूरा कर दो। चलो फिर एंड करते हैं सेशन जैसे हम्म, स्टार्ट किया था। आपला पेट ठेवा तो तुम बिल्कुल करना। गाना सुनना है चलो। तो स्नेहा को बोल दो, गा देगी। हाँ, जिस रुक जाओ। अभी देखते हैं क्या तुम लोग को जाने की है ये। बच्चे कुछ लोग भाग जाएंगे। वंदे मातरम करके सेशन बंद कर देते। भारत माता की जय। चलो ठीक है पीपल, थैंक यू यार तुम लोग का। बाय बाय, मिलते हैं। हाँ बाय। बाय थैंक यू बाय, निष्ठा। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय, सॉरी फॉर लेम जोक। जितना वैसे निष्ठा, बिफोर हाँ। गोइंग ये बता, इन सब में से सबसे बेचारी कौन है? वो हमें कहाँ जानती है यार। आइडिया भाई। जानती है वो। अभी नहीं देख सुन लिया सुन निष्ठा, सबसे इंटरेस्टिंग हाँ। किसने बोला? सबसे इंटरेस्टिंग क्या आगे देखो ये अरे अरे, यहाँ वापस प्रेशर मिल रहा है मुझे। नहीं नहीं
स्नेहा का नाम नहीं लिया तो भी चलेगा। चैट बॉक्स देख लो। सब प्रेसिडेंट का हाँ। नाम ले रहा है। बोर्ड को चिपकना चाहिए। अरे कनेक्ट होगा। अरे कोई तो मेरी परवाह कर रहा है। बस बढ़िया, लेकिन सही था सेशन, काफी सही था। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। थैंक यू। ओके।